What is financial planning? Identifying one's life goals and setting a chart or a roadmap to meet unexpected and unforeseen needs in one's life. और इसको सिंपली भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्यूचर गोल्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए ये डिज़ायर्स हो जो प्लानिंग हम करते हैं. ठीक है. The types of goals: short term, medium term goals, long term goals. Short term में buying things like LCD TV or family vacation. Medium term में like going on a vacation abroad. And for long term goals there are education or marriage one's child or post retirement arrangements. Now this is the life cycle of a person, economic life cycle. At this point a person starts earning and his income is more than the expenses made by him, so the savings is more at this point of time. This is the second stage of life, that is called as earner stage. Okay, so at a point of time our income starts decreasing, and after a time of retirement or after retirement it either becomes zero, or if there are other modes of income like rent or other, so the income decreases. And this is the consumption, as you can see at the stage when the person starts earning income. Okay, and later consumption becomes more at a point of time but income reduces, so it is thus necessary to make provisions or arrangements for future in advance. So these are the life stages. First is learner stage, when a person increases his own value by doing education. At this point of time a person is not earning income, he is just increasing his worth. And the second stage is earner stage, where a person has got selected for employment or got his first job. The income earned at this stage is more than the expenses made by him. It is this time when a person should start saving. The third stage is partner stage, when one gets married and has his own family. It is at this time that a person needs a separate house and needs to also make planning for children's future. Then comes the parent stage. In parenting stage a person has to make arrangements for education of his child so that they can go to good schools. Then this is the provider stage. In provider stage children have grown and become a teenager. At this point of time the education fees is very high as the child is going to high school या फिर college. And later on at this stage of time, that is provider, as you can see 35 to 55, later on arrangements need to be made for marriage of children. So these, at this stage saving becomes necessary. Okay, and the next stage is empty nester. At this time the children have left the parents, and at this age it is a period from 55 to 65. At this age people might have grown or got some diseases like BP or diabetes because the age is very high. तो ये टाइम पे जो है एक्सपेंसेस जो है हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस ये बढ़ जाते हैं. तो पहले ये फंड क्रिएट करके रखना चाहिए इंसान को ये स्टेज के लिए कि जब भी ज़रूरत पड़े वो यूज़ कर सके उस फंड को. देन कम्स रिटायरमेंट स्टेज. At this stage income of a person has totally reduced or has reduced
कम हो गया बट इनकम है, या फिर उसकी इनकम पूरी बंद हो गई रिटायरमेंट स्टेज में, ठीक है। तो ये स्टेज में जो एक पर्सन अपने जो सेविंग्स है उसमें से खर्चा करता है खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए। और ये टाइम ऐसा है कि एक पर्सन के पास जो भी हॉबीज़ है या जो भी उसकी विशेज़ है जो उसने पहले पूरे नहीं किए, ये टाइम में वो पर्सन उसको कंप्लीट कर सकता है। बट इसके लिए उसके पास एक फ़ंड होना चाहिए जो उसने काफ़ी पहले से क्रिएट किया होना चाहिए, ताकि वो अपना जो रिटायरमेंट स्टेज है काफ़ी अच्छे से जी सके। इट्स सेम ये दिस फेज, स्टूडेंट फेज, वर्किंग फेज एंड रिटायरमेंट फेज मैंने ऊपर कंप्लीट कर दिया था। स्टूडेंट फेज में क्या है? स्टूडेंट फेज इज द फर्स्ट फेज जहाँ पे एक पर्सन अपना स्किल बढ़ा रहे हैं और अपनी कैपिटल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। कैपिटल वैल्यू कैसे बढ़ा रहे हैं कि जब वो जितना ज़्यादा उनका एजुकेशन होगा, जब वो जॉब में लगेंगे, वो उतना हायर उनका सैलरी होगा। फिर है वर्किंग फेज जो कि है 18 से लेके 25 के बीच में चालू हो जाती है, इससे पहले भी हो सकता है जहाँ एक पर्सन का फर्स्ट जॉब लग जाता है, और ये आगे तक चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है उनके कंजम्पशन से, तो ये टाइम पे जो सेविंग्स है, सेविंग फंड काफ़ी ज़्यादा होता है, जो सेविंग्स इकट्ठा हो रहा है तो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेविंग्स में भी डाल सकते हैं। फिर रिटायरमेंट फेज़ है। रिटायरमेंट फेज़ में क्या है, एक पर्सन की इनकम काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, तो ये टाइम पे वो पर्सन को ऐसा होना चाहिए कि उसने पहले से ही एक फंड क्रिएट किया है जिसको वो ये टाइम पे आके यूज़ कर सकता है अपने लिए। ये सब स्टेजेस पहले के ही हैं जो मैंने दिखा दिया है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा एक बार। अभी इंडिविजुअल नीड्स कैसे कैसे हैं, एक स्पेसिफिक नीड्स है और जनरल नीड्स। स्पेसिफिक नीड्स जैसे चिल्ड्रन के लिए प्रोविज़न करना है, हायर एजुकेशन के लिए उनकी फ़ीस के लिए पैसे जमा करने हैं या मैरिज करने हैं बच्चों के लिए, ठीक है, ये है स्पेसिफिक नीड्स। जनरल नीड्स में क्या है, जो भी अमाउंट सेविंग्स को छोड़ के एक अलग से अमाउंट कुछ साइड में रखा है कि जो भी करंट के खर्चे हैं सामान लेने के और उसको मीट करने के लिए जो है वो है जनरल ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। तीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तीन तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट्स, बैंक डिपॉजिट्स हो गए और बाकी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे एक पर्सन की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। फिर है कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट्स। कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट ऐसे यानी ऐसे प्रोडक्ट जो यूज़ में आ भी सकते और नहीं भी, अभी जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। फिर है आते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स। वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट यानी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स जो हो गए, जो भी हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड बाद में इकट्ठा करने के लिए, जैसे रियल एस्टेट हो गया या बॉन्ड्स हो गए जिसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें से भी एमसीक्यू आता है, मैं जो जो कवर कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी आप एक बार बाकी देख लीजिएगा। देखो, व्हेन वन पर्सन इज यंग तो उसकी स्पेंडिंग जो है क्वाइट एग्रेसिव होता है और वो विलिंग है रिस्क टेक करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, जितने से जितना ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा हो सके उसको करने के लिए उसका एग्रेसिव स्पेंडिंग होता है, ठीक है। तो ये स्टेज में जो है यंग स्टेज में एक पर्सन विलिंग है या वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है शेयर मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे उसको रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, भले ही अनसर्टेनिटी होती है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो एक पर्सन थोड़ा समझदार हो जाता है एंड वो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालता है जो कि सिक्योर हो और लूज़ करने के चांसेस कम हो। एंड जब एक पर्सन का रिटायरमेंट हो जाता है तो वो इंडिविजुअल कंजर्वेटिव हो जाता है, तब वो पैसा बचाने के चक्कर में खर्चे कम करता है, बट पैसे बचाने के लिए ज़्यादा देखता है अपना कि हाँ कम से कम खर्चा हो रहा है।
ठीक है। तो ये है रिटायरमेंट स्टेज में जब एक आदमी आने वाला है, यानी अगर इंसान 50 to 55 में रिटायर होना है तो वो 50 या 52 के आसपास पैसे बचाने लग जाएगा और बहुत ही देख देख के खर्चा करेगा। और बाद में जो है रिटायरमेंट स्टेज के आसपास जो एक पर्सन का विलिंगनेस है दूसरों को देने की, जैसे अपने चिल्ड्रन को गिफ्ट देते रहते हैं या ऐसी, आपने भी देखा होगा कभी अपने रिलेटिव्स के घर में हुए होंगे, तो जो काफ़ी बड़े लोग होते हैं वो भी चॉकलेट्स देते हैं या कैश देते हैं बच्चों को। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिटायरमेंट स्टेज के आसपास जब आने लग जाता है। ठीक है। अभी ये रिस्क प्रोफाइल है, एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, सिक्योर्ड और कंजर्वेटिव। जब यंग होते हैं तो खर्चे जो होते हैं काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है और समझदार हो जाता है इंसान, और फिर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स में खर्च करता है। और बाद में रिटायरमेंट स्टेज के आसपास आके एक पर्सन जो है काफ़ी कम खर्चा करते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अभी यंगर एज में इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होता है, दैट इज एक्यूमुलेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, भले ही खतरा लेना पड़ जाए। ठीक है। फिर बाद में कैसे रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो एक पर्सन समझदार होता है और वो कम खर्चा करने लग जाता है, और बाद में जब रिटायरमेंट स्टेज के आसपास आ जाते हैं तो वो खर्चा एक तो कम करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में कैसे करते हैं, वो जो अपने बच्चे हैं या पोते हैं या नाती हैं उनको गिफ्ट्स देते हैं, जैसे स्वीट्स हो गए। कभी आप जाते हो तो आपके जो नाना नानी होंगे उन्होंने आपको दिया होगा, राइट, ऐसे देने लग जाते हैं बच्चों को यूज पे। तो ये मैंने जो है ये पार्ट ऊपर जो कंप्लीट किया है ये सब यही है नीचे, एक बार आप फिर भी ये देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेक्शन जो हम बाद में करेंगे। और एक और चीज़ है कि एक इंडिविजुअल को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी उसने प्रॉपर्टीज़ या स्टेट क्रिएट की है या वेल्थ क्रिएट किया है अपने लाइफ टाइम में, वो आराम से अपने जो भी उनके बेटे हैं, बेटी है या जिसको भी देना चाहे उसके लिए स्मूथली पास ऑन कर पाए अपने डेथ के बाद। व्हेन इज राइट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, जो सही टाइम है, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो जैसे ही एक पर्सन को इनकम मिलने लग जाता है वैसे ही उसको जो है अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में जो भी हम एडवाइस करते हैं उसके सर्विसेज में क्या आते हैं, एक तो कैश के लिए प्लानिंग है, फिर इन्वेस्टमेंट करने में प्लानिंग है, इंश्योरेंस प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, स्टेट प्लानिंग हो गई और टैक्स प्लानिंग हो गई। ठीक है। अभी कैश प्लानिंग में क्या क्या आता है, मैं कैश फ्लो जो है उसको मैनेज करने के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो एक फंड ऐसा क्रिएट करके रखना जिसको यूज़ किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे यूज़ कर सकें। और दूसरा है कि एक सरप्लस, एक पार्ट को ऐसा यूज़ करना कि क्रिएट करो और मेंटेन करो जो आप एक्स्ट्रा इनकम या सरप्लस कमा रहे हो कैश का, यानी जैसे आप अगर बैंक में डालते हो या कहीं पे तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। दूसरा पार्ट जो होता है हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको बजट प्रिपेयर करके रखना है कि कितना आपका इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं। सेकेंड स्टेप क्या है कि अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करो, जो भी इनकम आ रहा है या जा रहा है उसको देख के, जो भी पास्ट 6 मंथ्स है उसके हिसाब से।
और फिर एक्सपेंसेस को क्लासीफाई करो दो में, फिक्स्ड में और वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक्सपेंस आपका होना ही होना है। एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है जो आप कम भी कर सकते हो या फिर आप खर्चा बाद में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में आपको जो महीने का इनकम आएगा वो कितना होगा और आपका कितना साल का खर्चा होगा। सेकेंड है इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस प्लानिंग भाई इट नेसेसरी बिकॉज कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमें हमारा जो फाइनेंशियल गोल्स है फ्यूचर की, यानी अगर आपने ऐसा सेट किया कि मुझे 10 ईयर्स में 50 लाख कमाना है, राइट, वो कुछ ना कुछ गोल रहता है। बट अगर बीच में कभी आपको वो पर्सन को जो इनकम आता है उनको कुछ कभी हो गया तो उस केस में कैसा होगा, उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाते तो उनका जॉब पे कुछ असर पड़ सकता है, राइट। तो कहीं कहीं पे ना इसके लिए प्लानिंग पहले से करना पड़ता है। एंड एक्सीडेंट में कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो है ये रिस्क हैं, तो ये रिस्क को इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस देना चाहिए, सफिशिएंट इंश्योरेंस, ठीक है। अभी लाइफ इंश्योरेंस कितना देना चाहिए वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा देख के कि कितना एक पर्सन के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं खुद के और खुद के जो भी फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है। इन केस ये क्यों तैयार करना है, ताकि अगर कभी भी जो इनकम अर्न कर रहे हैं उनका कभी भी डेथ हो गया रिटायरमेंट से पहले तो उनके फैमिली को जो होगा, उनके फैमिली का इनकम बंद हो जाएगा। तो ये टाइम पे क्या होगा, उनका जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होगा। तो ये कंडीशन, ये एक रिस्क है, इसको प्रिवेंट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी ना एक इंसान जब बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा वो आप भी नहीं जानते, है ना। तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर देनी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए लिया जाता है ताकि अगर कोई भी फ्यूचर में एक्सपेंसेस हो हॉस्पिटल का तो वो कवर हो सके। और फिर इंश्योरेंस आता है वंस एसेट, जो जनरल इंश्योरेंस पर या जो आप इंश्योरेंस आपके व्हीकल पे या आपके घर पे या आपकी फैक्ट्री पे लेते हो। अभी ये यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स, यानी ये चीज़ों को देख के हम लोग देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना और कितना करना है, ठीक है। फर्स्ट है रिस्क टॉलरेंस, फिर है टाइम हॉरिजन, फिर है लिक्विडिटी, देन मार्केटेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क टॉलरेंस क्या है कि एक पर्सन की एबिलिटी जो है रिस्क लेने की, कितना वो रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट लेने में, ठीक है। फिर टाइम हॉराइजन का क्या है, जो टाइम अवेलेबल है एक पर्सन के पास अपने फाइनेंशियल गोल्स इकट्ठा करने के लिए। यानी अगर एक पर्सन नया नया जॉब में लगा और उसने कहा मुझे 5 ईयर्स में उसका गोल है कि मुझे 10 लाख जो है 10 लाख तक इनकम या मेरा बैंक बैलेंस जो भी है मुझे जमा करना है, ठीक है। तो ये टाइम पे 5 ईयर्स जो है वो उनका टाइम हॉराइजन हो गया। लॉन्गर द टाइम हॉराइजन, जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा जो है रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी ऐसा चीज़ है, व्हाट डज लिक्विडिटी मीन, लिक्विडिटी मीन्स कि आपके पास जब भी आपको चाहिए, ठीक है, आप कोई भी एसेट्स ले रहे हो या कुछ भी है आपके पास जो भी आपका प्रॉपर्टी है, तो वो कितने जल्दी कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको नीड हो कैश का, दैट इज़ लिक्विडिटी। अभी आपने लिक्विड एसेट्स भी सुना होगा, राइट। लिक्विड एसेट्स यानी वो एसेट्स जिसको आप जल्दी से जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी उसको बेच के कैश आए और उसको आप यूज़ कर सको जो भी आपका पर्पज़ है। फिर है मार्केटेबिलिटी। मार्केटिंग मतलब कितनी आसानी से आप एक
एसेट को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। एसेट यानी ऐसा गुड जिसके आप ओनरशिप हो। देन हैज डाइवर्सिफिकेशन एक्सटेंड तक वन विलिंग है अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगह पे, ताकि उनका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन में कैसा होता है, अगर एक पर्सन ने 5 इन्वेस्टमेंट्स किया, अभी 1 या 2 में लॉस भी हो गया, तो कम से कम 3 में इतना पैसा आएगा या फिर उन दोनों का बैलेंस हो जाएगा कि कम से कम उसको अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये डाइवर्सिफिकेशन में आता है। इसके लिए लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक है टैक्स कंसिडरेशन। अब इन्वेस्टमेंट्स जो है काफ़ी सारे इनकम टैक्स में बेनिफिट्स देता है, तो आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शंस, ठीक है। भी ये सब है इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ कर सकता है एक पर्सन। फिक्स डिपॉजिट में कर सकता है बैंक में, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गया, पोस्ट ऑफिस के, पब्लिक इशू हो गए शेयर्स के या डिबेंचर हो गए, या म्यूचुअल फंड हो गए, या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गए। अब रिटायरमेंट फेज में क्या है, 3 फेजेज है रिटायरमेंट के। एक है एक्यूमुलेशन, एक है कंजर्वेशन, एक है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में क्या है, फंड्स जो है अलग अलग वे से या अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा किया गया है। पैसा जो है उसको साइड में रखा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्यूमुलेशन स्टेज में, ठीक है। कंजर्वेशन क्या है, एफर्ट्स मेड टू इंश्योर दैट वंस इन्वेस्टमेंट आर पुट टू हार्ड वर्क एंड दैट प्रिंसिपल गेट्स मैक्सिमाइज ड्यूरिंग इंडिविजुअल्स वर्किंग ईयर्स। यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा डालो जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन की इनकम हो जब वो जॉब कर रहे हैं वो टाइम पे। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेज है जहाँ पे एक पर्सन जो है अपने जो भी रिलेटिव्स में है या फिर जो जैसे छोटे बच्चे आ जाते हैं ना, नाता नाती या पोता पोती, तो उनको ये एज में जो है बड़े अपने उनको गिफ्ट करते हैं, लाइक आपने भी देखा होगा पैसे देते हैं। स्टेट प्लानिंग है। फिर स्टेट प्लानिंग में क्या है, देर आर 2 टर्म्स यूज हियर, नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। नॉमिनेशन यानी ऐसा कि अगर एक पर्सन का जब भी डेथ होता है तो उन्होंने एक दूसरा जो है उनकी बेटा या बेटी या अपनी वाइफ ने एक पर्सन को सिलेक्ट किया होगा जिसको जो भी उनका इनकम है या जो भी उनका प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र होगा। असाइनमेंट में कैसा है कि एक पर्सन जब एक लोन लेता है तो उसको एक प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है जिससे आगे उसको लोन ले सके, राइट। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक पर्सन अपने खुद की एसेट को दूसरे को ओनरशिप दे देता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग ये है कि कैसे एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सेव कर सके और इसी इनकम सेव कर करके उसका जो इनकम सेव करके मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना जहाँ पे उनको टैक्स का बेनिफिट मिले और उनको कम से कम उनके ऊपर टैक्स लगे, ठीक है। ये आता है टैक्स प्लानिंग में। टैक्स प्लानिंग में इवेजन ऑफ टैक्स नहीं आता। Okay, so with this our chapter is completed.